بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ فرت بخاری تفہیم القرآن کورس میں لیسن نمبر 4 کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ اسم کے شروع میں عرض کیا تھا کہ 4 چیزوں کو اسم میں دیکھنا ہے کہ آیا یہ معرفہ ہے یا نکرہ۔ معرفہ کی پہچان ہم نے تفصیل سے سابقہ 3 اسباق میں کر دی۔ اگر ان اسماء میں اسم معرفہ کی علامات موجود ہیں تو وہ اسم معرفہ ہوگا ورنہ نکرہ ہوگا۔ اور آج ہم نے مذکر اور مؤنث کو دیکھنا ہے، تو اگر اسماء میں علامت مؤنث کی موجود ہے تو وہ مؤنث ہوگا ورنہ وہ اسم مذکر ہوگا۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کچھ اسماء ایسے ہیں جو حقیقی طور پر مؤنث ہوتے ہیں، جیسے امن ہے، ماں، بنتن بیٹی، اختن بہن، امرأتن عورت، تو یہ اسماء جو ہیں یہ حقیقی طور پر مؤنث ہوتے ہیں۔ اگر حقیقی لفظ ہمیں مؤنث کا نہیں ملتا تو ہم اس میں کچھ علامت دیکھیں گے لفظی، جیسے تائے مربوطہ ہے، اس اسم کے آخر میں اگر تا ہے اس کے اوپر 2 پیش ہیں، غرفتن ہے، ساعتن ہے، آیتن ہے، جنتن ہے، تو یہ اسماء بھی مؤنث ہوں گے۔ اور اگر ان پر الف ممدودہ ہے، جیسے صفراء، حمراء، صحراء، تو یہ اسماء بھی مؤنث میں شامل ہوں گے۔ اور الف مکسورہ اگر ہے، کبریٰ ہے، صغریٰ ہے، تو یہ بھی مؤنث کی علامات ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کچھ الفاظ مذکر ہوتے ہیں اور ان کے سامنے ان کی مقابل مؤنث بھی ہوتی ہے، جیسے صالح ہے، تو اس کے اگر آخر میں آپ تا اور اس کے اوپر 2 تنوین لگاتے ہیں، صالحاتن، تو یہ مؤنث ہوگی۔ مسلم ہے، مذکر ہے، مسلماتن مؤنث۔ طفل مذکر ہے، اگر آخر میں تا اور 2 تنوین ہم لگاتے ہیں، طفلتن، تو یہ مؤنث ہوگی۔ پھر ہم نے کچھ اسماء ضمیر میں اور اسماء اشارہ میں ہم نے کچھ کل الفاظ دیکھے تھے، اسماء، جیسے ذالکہ ہے، مذکر کے لیے ہے، تلکا مؤنث اسم کے لیے ہوتا ہے، ھذا مذکر کے لیے، ھذہ مؤنث کے لیے، الذی مذکر کے لیے، اللاتی مؤنث کے لیے، ہوا مذکر، ہیا مؤنث کے لیے، جبکہ تثنیہ میں ہما مذکر کے لیے بھی ہما ہے، مؤنث کے لیے بھی ہما ہے۔ پھر ہم کو دیکھا تھا ہم نے مذکر کے لیے، ہن مؤنث کے لیے، انتا مذکر کے لیے، انتے مؤنث کے لیے۔ 2 اگر ہیں مخاطب تو مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے انتما استعمال ہوگا۔ مذکر کے لیے جمع ہے، حاضر کسی کے بہت زیادہ ہیں جن کو ہم کہتے ہیں تم، تو مذکر کے لیے انتم، اور مؤنث اگر ہیں خواتین ہیں تو ان کے لیے ہم انتن کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ آئی کے لیے آنا، چاہے وہ مذکر ہو چاہے وہ مؤنث ہو۔ وہی ہم کے لیے نحن، اگر وہ مذکر ہے، مؤنث ہے تو پھر بھی نحن۔ پھر ہم نے فعل میں دیکھا تھا ضربہ۔ ضربہ کے معنی یہ بتائے تھے کہ اس نے مارا، یعنی اس مرد نے مارا، اور اس کا مؤنث ہم جو اس پہ آخر میں صرف تا لگا دیں اور اس کے اوپر جزم لگا دیں، ضربت، ضربہ کے ساتھ تا اور اس پر جزم لگا دیں تو ضربت، اس عورت نے مارا۔ یہ 2 صیغے ہم نے فعل میں پڑھے تھے، ایک مذکر کے لیے ہے، ایک مؤنث کے لیے ہے۔ پھر مضارع میں جو حال اور مستقبل کے معنی دے گا، یضربو، یہ مذکر کے لیے ہے کہ وہ مارتا ہے، جبکہ اگر یا کی جگہ آپ صرف تا لگا دیں تو تضرب بن جائے گا، وہ عورت مارتی ہے۔ پھر اس کے بعد جسم کے وہ اعضاء جو 2 ہوتے ہیں، جیسے ہاتھ 2 ہوتے ہیں، آنکھیں 2 ہوتی ہیں، پاؤں 2 ہوتے ہیں، اسی طرح کان 2 ہوتے ہیں، تو یہ اسماء جتنے بھی ہیں یہ مؤنث ہوں گے۔ یدن ہاتھ، عینن
आँख, रिजलुन पाँव और ओजुनुन कान, तो ये भी मुअन्नस है। फिर कुछ ऐसे अस्मा हैं जिनकी कोई अलामत नहीं है, न वो हकीकी हैं न वो लफ्ज़ी हैं, तो उनका कैसे मालूम होगा कि ये मुज़क्कर हैं या मुअन्नस हैं? कुरान मजीद के साए में हम चलेंगे, कुरान मजीद भी हमें बताएगा कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है। ज़ालिकल किताबो, तो ज़ालिका इसमें इशारा है बाईद का, किसके लिए? मुज़क्कर के लिए। तो जब ज़ालिकल किताबो है तो इससे ये मालूम हुआ कि किताब मुज़क्कर है, क्योंकि ज़ाले का साथ इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह हाज़िही जहन्नम, कुरान मजीद में है, तो जहन्नम के साथ जो हाज़िही इस्तेमाल हो रहा है, ये इसमें इशारा बता रहा है हमें कि ये जहन्नम जो है ये मुअन्नस है। इसी तरह हाज़ा सिरातुन, ये रास्ता, सिरातुन के साथ हाज़ा इस्तेमाल हुआ है, तो गोया सिरातुन मुज़क्कर है। हाज़ी जहन्नम, इसको हम देख चुके। हाज़ल कुरआन, तो अल कुरआन के साथ हाज़ा का इस्तेमाल होना बताता है कि कुरआन मुज़क्कर है। उसके बाद आज हम तो मुज़क्कर मुअन्नस में हमने सिर्फ चार चीज़ें देखनी है। एक कि आया ये हकीकी है या उसमें ताए मरबूता है या आखिर में अलिफ ममदूदा है या अलिफ मकसूरा है, तो ये अस्मा मुअन्नस होंगे या हमें कुरान मजीद में उनके इस्तेमाल से मालूम होगा कि उनके साथ इसमें इशारा कौन सा इस्तेमाल हुआ है। और कुछ चीज़ें हैं जो हमें फ़ेल के बाद हमें देखेंगे कि जैसे सूरज है तो ये भी मुअन्नस है, तो ये हमें उनका फ़ेल के साथ जो इस्तेमाल होगा, जब हम फ़ेल पढ़ेंगे तो वो चीज़ें हम उस वक्त देखेंगे कि शम्स जो है वो किस तरह मुअन्नस है। मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ की आज हम कुछ वजाहत कर देते हैं इसी हवाले से। अंबिया के अस्माए ग्रामी जैसे नूहुन है, लूतुन है, सालेहुन, मुहम्मदुन, शुएबुन, इनके ऊपर तनवीन होती है, ये कसरा को भी लेते हैं, तो ये मुनसरिफ कहलाए जाते हैं। और जिनके ऊपर तनवीन नहीं आती और वो कसरा भी नहीं कबूल करते, जैसे इब्राहीम व अंबिया के अस्माए ग्रामी, आदम व इसहाक व इस्माइल व याकूब व अयूब व दाऊद व यूनुस व सुलेमान व यूसुफ, ये अस्मा जितने हैं गैर मुनसरिफ हैं, इन पर तनवीन नहीं आती, इन पर कसरा नहीं आता। कुरान मजीद में हमने इनकी पहचान करनी है। फिर उसके बाद आज मुज़क्कर मुअन्नस हमने पढ़ा उसी हवाले से, जो अस्माए ग्रामी हैं जैसे ज़ैनब है, खदीजा तो, आयशा तो, फ़ातिमा तो, उसामा तो, तलहा तो, हमज़ा तो, हुज़ैफ़ा तो, ये तमाम अस्मा जो है ये भी गैर मुनसरिफ है, इन पर तनवीन नहीं होती और ये कसरा भी कबूल नहीं करते। फिर मुज़क्कर में उस्मानो है जो अलिफ और नून इस वज़न पे है, उस्मानो, अदनानो, सलमानो, ये तमाम भी जो हैं गैर मुनसरिफ होते हैं, इन पर तनवीन भी नहीं होती और ये कसरा भी कबूल नहीं करते। और फ़रिश्तों के जो अस्माए ग्रामी हैं, जिब्राईलो, मीकाईलो, हारूतो, मारूतो, इन पर भी हमें कुरान मजीद में तनवीन नहीं मिलेगी और ना ही इन पर कसरा होगा। जो शहर के अस्माए हैं जैसे पाकिस्तान हो, मक्का तो, मिस्र हो, इन पर भी तनवीन नहीं आती और ना ये कसरा कबूल करते हैं। आज हमने सफ़रा पढ़ा, हमराव पढ़ा, तो ये भी जो इस वज़न पे होते हैं वो भी गैर मुनसरिफ होते हैं। फ़िरऔन है, हामान है, कारून हो, इबलीस हो, जहन्नम हो, ये तमाम अस्मा गैर मुनसरिफ हैं, इन पर न तनवीन होती है ना ही ये कसरा कबूल करते हैं। हरूफ जारा हम तकरीबन देख चुके, आज सिर्फ उसकी एक मिसाल दोबारा हम देख लेते हैं। बा हरफ जार के साथ मानी बिल्लाह, कसरा आप देख रहे हैं, बा के बाद है। वशम से, कसरा आप देख रहे हैं सीन के नीचे। मिनश्शर्रे, रा के नीचे कसरा है, मिन के बाद है इसम।
लिल काफिरीना, इसके ऊपर कसरा नहीं है, ज़बर है, लेकिन जब हम आराब को हम आगे देखेंगे अगले लेक्चर्स में तो मैं अर्ज़ करूँगा कि लाम के बाद अगर चाहिए काफिरीन आ रहा है तो ये काफिरीना क्यों है, काफिरीने क्यों नहीं है। ले इब्राहीमा तो गैर मुनसरिफ है, इसलिए इसके ऊपर कसरा नहीं है, बल्कि इसका जो पेश थी, जो रफ़ा था, वो सिर्फ ज़बर में तब्दील हुआ है। अलल अर्श, शीन के नीचे कसरा है। फिल मस्जिद, मस्जिद में दाल के नीचे ज़ेर है। कल फराश इला जबलन, अब इसमें सिर्फ ये देख लें कि इलल बैत घर की तरफ, इला जबलन पहाड़ की तरफ, तो बैत ता के नीचे सिर्फ एक ज़ेर है, जबलन के नीचे दो ज़ेर हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि इलल बैते में अलिफ लाम आ रहा है। अलिफ लाम जब आता है तो वो तनवीन ख़त्म हो जाती है, इलल बैते हो जाता है। और इला जबलन, यहाँ पर चूँकि जबल से पहले अलिफ लाम नहीं है तो इसीलिए इला जबलन है। अगर ये होता अलिफ लाम हम लगा दें तो इलल जबले होता, और ये इलल बैते है, अगर अलिफ लाम हटा दें तो फिर क्या बनेगा? इलल इला बैतिन। इला ज़िक्रिल्लाह है, हत्ता के बाद भी जो इसम होगा वो भी कसरा उस पर होगी, हत्ता हीन। हर्फ जार भी हम आज देख चुके तकरीबन। तो फ़ेल माजी में अभी हमने देखा मुज़क्कर मुअन्नस में भी, दाराबा उसने मारा, उस मर्द ने मारा, बा के आगे ता लगा दें, उसके ऊपर जज़्म रख दें, दौरा बत कर दें तो ये उस औरत ने मारा। दो सीगे फ़ेल माजी में हमने देख लिए हैं। फ़ेल मुज़ारे में उसी की हम दोहराई कर देते हैं, यादरेबो तादरेबो तादरेबो आदरेबो नादरेबो। यादरेबो उस वो मारता है मुज़क्कर, ये तादरेबो वो मुअन्नस औरत मारती है, तादरेबो तू मारता है, आदरेबो मैं मारता हूँ, नादरेबो हम मारते हैं। कल हमने इसमें ज़मीर में जो पढ़े थे होवा हुमा, उसकी सिर्फ दोहराई कर देते हैं। होवा हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंते अंतुमा अंतुन्ना, आना नहनु। हुवा हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंते अंतुमा अंतुन्ना, आना नहनु। और आखिर में सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा कि आप कमेंट्स के लिए ज़रूर नवाजें ताकि तफ़हीमुल कुरान ग्रुप आपके लिए इसको मज़ीद सहल और आसान कर सके। और जिन हज़रात को इन लेक्चर्स के नोट्स दरकार हों तो वो बराए मेहरबानी अपने एडमन से रब्ता फरमाएं ताकि आपको PDF भेज दी जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना हबीबिकल करीम व अला आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम।